बेटा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू प्रोबेबिलिटी या तो प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट्स के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो चैट ग्रुप में लिखें क्योंकि उसको मैं लाइक कर सकूँ। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उस पर हम जाएंगे, दैट इज स्टेजिंग इन कैंसर और कैंसर की स्टेजिंग जो है वो किस तरह की जाती है पढ़ेंगे अभी। सो उससे पहले लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप दे सकते हैं रिगार्डिंग टू या फिर लेटर इंडेक्स के बारे में वो चैट ग्रुप में लिखे ताकि मैं उसको आंसर कर सकूँ। एंड we don't have much time left. And before that, we have to finish this lecture, which is this lecture is not big enough. आप इंशाल्लाह will ओके अरीशा वाले ने बोला कैन अ शेकिंग टूथ बी सेव्ड। बेटा आपको मैं इसका आंसर इस तरीके से दे सकता हूँ कि दैट हाईली डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी स्कोर। अगर आपकी मोबिलिटी स्कोर 1 या 2 है इट कैन बी सेव्ड, लेकिन अगर आपकी मोबिलिटी स्कोर स्टेज 3 तक या फिर क्लास 3 तक चला गया तो उसे हम सेव नहीं कर सकते। उसको उसके द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव इज कि हम निकाल दें। Okay, so class 2, class 1 and class 2 are savable and class 3 is not savable और इसको हम extraction कर देते हैं। ठीक है, ये आपने बात समझनी है। That's why it's very important कि आप लोगों को stage 1 या class 1, class 2 and class 3 तीनों को पता होना चाहिए कि हमने कौन से दांत को कितनी होना चाहिए ताकि हम उसको सेव कर सकें। ओके So staging in cancer. Now we will start the next topic. So cancer staging care. It is an important part of patients treating a patient treatment. Because उससे पहले हम ये फाइंड आउट करना है कि ये जो कैंसर है ये कहाँ तक स्प्रेड किया गया है और what stage it has reached. Staging is system that is used to classify the extent of cancer. When do we use test stage cancer? Usually cancer is staged at the time of diagnosis. जब diagnosis करे होते हैं तब हम staging करते हैं. They may not be possible if patient present on an emergency. After surgery, a pathologist होता है वो study करता है टिश्यू को जो कि remove की जाती हैं और उसे pathological staging कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्टेजिंग के लिए जो सिस्टम यूज होते हैं उसे TNM कहते हैं। ओके, and it is a standard system for staging the most cancers based on tumor, lymph nodes, and metastasis. So T stands for tumor, N stands for nodes, and M stands for metastasis. So the T in TNM relates to tumor. It indicates the tumor size. tumor size देखते हैं, extent देखते हैं, penetration देखते हैं। ठीक है, N stands for node, indicates the number of lymph node जो कि involve हो चुके हैं। ठीक है, M stands for distance metastasis कि कितना spread किया जा चुका है। ओके, तो तीन चीजें हम लोग इसमें देख रहे हैं। Okay, different tumors may spread to different parts of the body. It is important to test whether the tumor has spread to other organs or not. और spread को हम लोग किससे denote करते हैं? M से। M is metastasis. Okay. Patient can have tests such as computed tomography, CT scan जिसे हम बोलते हैं, MRI, magnetic resonance imaging बोलते हैं, and positron emission tomography जिसे PET scans बोलते हैं। इसे इन चीजों से हम लोग टेस्ट करते हैं। After staging of the cancer, patient and the doctor can take a proper treatment plan. So जो most common है वो क्या है? Breast cancer, colorectal cancer, stomach cancer, esophagus, pancreatic cancer, and lung cancer.
Other cancer stage with anti-NM system include soft tissue, sarcoma, and melanoma. Okay, other staging system दूसरे पूछ सकते हैं. Some cancers are not staged due to KNM system, such as cancer of the blood, bone marrow cancer, brain cancer, and the sites that do not use TNM staging. So gynecologic cancer use another staging that is system. That system is called FIGO, FIGO system. International Federation of Gynecology and OPS usually use FIGO as an acronym of its French name, Federation Internationale de Gynecologie et Obstétrique. ये दूसरी इसी तरह की जो पैथोलॉजिकल स्टेजिंग है उसमें न्यू स्टेजिंग ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर है. It is based on actually based on histological examination uh, of resected colorectal cancer specimen. As you can see from here, A, B, C, तीन है. A is invasive carcinoma, which is the muscularis propria. इसको हम लोग ये देख सकते हैं कि जो कार्सिनोमा है उसने अभी तक मसल को इन्वॉल्व नहीं किया. डी जो है उसमें ये होता है इन्वेसिव कार्सिनोमा ब्रीचिंग द मस्कुलरिस प्रोप्रिया बट नॉट इन्वॉल्व रीजनल लिम्फ नोड्स को उसने इन्वॉल्व नहीं किया. थर्ड वन इज के इन्वेसिव कैंसर इन्वॉल्विंग द रीजनल लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व किया. ओके, व्हाट डज स्टेज ग्रुपिंग मीन? डीएनएम की बेस पे हम लोग स्टेज ग्रुप करते हैं. उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 and stage 4 होता है. Okay, once the TNMS categories have been determined, they can be placed the cancer into stage group. Stage groups जो है वो मैंने करा था 1, 2, 3, 4 ये होते हैं stage. The larger the stage number, the more advanced stage of the cancer. Okay, staging form information is useful to guide the treatment with adjuvant treatment. क्या होता है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों को कंबाइन करके हम दे रहे थे. और it also determines the progress, the prognosis and survival. So this is it for the मेरा कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के बारे में तो मुझे आप अभी लिख दो. मुझे आई विल फील कि अगर मैं आप लोगों के किसी भी कंफ्यूजन का आंसर कर सकते हैं तो आई वुड बी हैप्पी टू डू इट.
Okay, Osama Saif finally कोई क्वेश्चन आया, हैप्पी विद दैट। Osama Saif ने बोला है कि ब्रुक्सिज्म का क्या होगा। बेटा बेटा दो चीजें होती हैं। ब्रुक्सिज्म को दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक तो उसको प्रिवेंट करना होता है फॉर द फर्दर डैमेज। अगर फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, मैंने आपको बोला कि नाइट गार्ड्स दिए जाते हैं। नाइट गार्ड्स क्या होते हैं? नाइट गार्ड्स होते हैं कि ये प्रोटेक्टिव लेयरिंग जो होती है, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन दी जाती है दांतों के सर्फेसिस के ऊपर, जिसकी वजह से पेशेंट उसको ग्राइंड नहीं कर सकते। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि रूट कॉज की तरफ हम लोग जाते हैं। रूट कॉज ये होता है कि ब्रुक्सिज्म जो है दैट इज बिकॉज ऑफ एनी अंडरलाइंग साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इशू, जिसकी वजह से ब्रुक्सिज्म जो है वो पेशेंट होता है। तो हम लोग पेशेंट्स को हम लोग जो साइकेट्रिक हेल्थ या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की भी हम लोग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरी चीज वो ये होती है कि मसल रिलैक्सेशन टेक्निक से इसमें मसल को रिलैक्स करते हो, मसल को एक्सरसाइज करते हो, जो कि ब्रुक्सिज्म में हेल्प करती है और उसको रिलीव करती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? सब ठीक है? रमजान अच्छे गुजर रहे हैं? प्लेंटी ऑफ ऑनलाइन पीपल, वेरी नाइस। आई होप कि सबका रोजे अच्छे चल रहे हैं। एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम। ठीक है, 15 जुलाई तक डेट आ रही है कि ऑफ रहेगा, उसके बाद ओपन होगा सब कुछ स्लो एंड स्टेडली। ठीक है, डेट्स भी आ रही हैं एग्जाम की, सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, एग्जाम्स होंगे सबके टाइम पे होंगे इंशाल्लाह, तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, घर पे आराम आराम से तैयारी करें। अच्छा चलें, स्टार्टिंग फ्रॉम द अच्छा, गुड न्यूज़ इज कि हमारा जो कंप्लीट डेंचर के ऊपर मल्टीपल लेक्चर्स थे लेबोरेटरी ओरिएंटेड, वो अब ऑलमोस्ट खत्म होने लगे। ठीक है, ये आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट डेंचर को खत्म कर देंगे। अभी तक शुरू से लेके अब तक हम कंप्लीट डेंचर के ही लेबोरेटरी स्टेप्स पढ़ रहे थे। ठीक है, बहुत सारे हमने लेबोरेटरी स्टेप्स पढ़े जो कि हम अभी थोड़ा सा फिर रिवाइज भी करेंगे, और बल्कि इन दो लेक्चर्स के बाद मैं एक रिवीजन लेक्चर रखूंगा। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको समराइज करके हम एक रिवीजन लेक्चर भी रखेंगे। ठीक है, तो अभी जो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन द फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर। ठीक है, और उसमें जो दो स्टेप्स हैं उनका नाम है फ्लास्किंग एंड डीवैक्सिंग। इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो मजीद लेबोरेटरी प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर इज ऑन व्हाट इज फ्लास्किंग, व्हाट इज डीवैक्सिंग, और फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर होती क्या है। ठीक है, इस पिक्चर में जो आपको नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली ऑफ एन आर्टिकुलेटेड कास्ट। इसके ऊपर पेशेंट के कास्ट है, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि दो अपर और लोअर डेंचर अक्लूजन में लगे हुए हैं। ठीक है, दे आर मेड इन वैक्स। ये दांत जितने भी होते हैं दे आर मेड ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड एक्रेलिक, और बाकी जो उसकी बेस है दैट इज कंप्लीटली ऑफ वैक्स। वैक्स अगर आपने यूज की होगी और बायोलॉजी में और वैसे भी, तो आपको पता होगा इट इज वेरी सॉफ्ट। हम पेशेंट के मुंह में वैक्स नहीं डाल सकते। अभी तक हम वैक्स में इसलिए सारा काम कर रहे थे बिकॉज इट इज मोल्डेबल, इसको मेल्ट कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब जब हमने पेशेंट को उसका कंप्लीट डेंचर देना है तो वी कैन नॉट गिव इट इन वैक्स। हम उसको एक हार्ड फॉर्म में देंगे ताकि उसको वो उससे च्यू कर सके, उससे बात कर सके, वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहे। तो वो मटेरियल होता है हीट क्योर एक्रिलिक। अब हम इस वैक्स्ड डेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू हीट क्योर एक्रिलिक, और
इस कन्वर्जन को हम कहते हैं फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर। ठीक है, तो बेसिकली द फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्लीट डेंचर में आप वैक्स्ड डेंचर्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू हीट क्योर्ड एक्रिलिक डेंचर्स। हीट क्योर्ड एक्रिलिक हमने पढ़ा था, आपने शायद डेंटल मटेरियल्स में भी अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा हो। ठीक है, एक होता है सेल्फ क्योर एक्रिलिक और एक होता है हीट क्योर्ड एक्रिलिक। हीट क्योर्ड सेल्फ क्योर एक्रिलिक की आपने क्या चीज बनाई थी अगर आपको याद हो? What did you make of the material self cure acrylic? Any guess? किसी को याद है? टाइप करो, पता है ना? रिकॉर्ड बेस हमने बनाई थी इन वैक्स। ठीक है, रिकॉर्ड बेस वाज मेड इन वैक्स, मॉडलिंग वैक्स, बेस प्लेट वैक्स। ठीक है, और हमने स्पेशल ट्रे बनाई थी ऑफ सेल्फ क्योर एक्रिलिक। आपको याद होगा उसमें हमारी वो डो स्टेज थी, सैंडी स्टेज थी, स्ट्रिंगी स्टेज थी, हमने मिक्स किया था। दैट मटेरियल वाज सेल्फ क्योर एक्रिलिक। उसको मिक्स करके वो सेल्फ क्योर का मतलब होता है वो खुद का खुद हार्ड होके एक्रिलिक बन जाता था। ठीक है, बट वो इतना नीट नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, और दूसरा मटेरियल जो सेल्फ क्योर एक्रिलिक के अलावा होता है उसे कहते हैं हीट क्योर्ड एक्रिलिक। इट इज वेरी स्टेबल। हमने इसके वो मैंने आपको हैंडआउट्स दिए थे जिसमें इन दोनों का कंपैरिजन था। इट इज वेरी स्टेबल, इसमें मोनोमर लीक नहीं होता, इस इरिटेंट नहीं होता। हीट क्योर्ड एक्रिलिक इज परमानेंट। ठीक है, सेल्फ क्योर एक्रिलिक इज टेम्पररी। और रिकॉर्ड बेसिस भी कुछ सेल्फ क्योर की बनती हैं। इकरा, यू आर राइट। ठीक है, आप लोगों ने जो काम किया था वो स्पेशल ट्रे बनाई थी, बट वी कैन आल्सो मेक टेम्पररी रिकॉर्ड बेसिस विद सेल्फ क्योर। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द आंसर्स आर राइट। सो वील गो फॉरवर्ड। ठीक है, आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रायल एंड व्हाट इज डेंचर प्रोसेसिंग। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड्स। अगर आप मेरे पास आज होते तो सबसे पहले मैं आपको यही कहता कि मुझे बताएं कि व्हाट आर द स्टेप्स इन कंप्लीट डेंचर फैब्रिकेशन, शुरू से लेके आखिर तक कि कौन कौन से स्टेप से हम फैब्रिकेट करते हैं स्पेशल ट्रे, सॉरी कंप्लीट डेंचर। ठीक है, तो स्टेप्स इन कंप्लीट डेंचर फैब्रिकेशन में सबसे पहले क्या होगा, यू विल रिसीव अ पेशेंट। आपके पास ई डेंचरलेस पेशेंट होगा जिसके मुंह में कोई दांत नहीं होंगे, उसका आप एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे एंड यू विल मेक इट सूटेबल कि हाँ जी दिस पेशेंट इज सूटेबल फॉर फैब्रिकेशन ऑफ कंप्लीट डेंचर, इसको कंप्लीट डेंचर लगा दें। तो सबसे पहले यू विल टेक अ स्टॉक ट्रे। इस पिक्चर में जो स्टॉक ट्रे दिखाई गई है, दिस इज अ प्लास्टिक परफोरेटेड स्टॉक ट्रे और इसमें यू विल टेक हिज प्राइमरी इंप्रेशन। प्राइमरी इंप्रेशन आप इसलिए इसको प्राइमरी कहते हैं बिकॉज हमने इसके बाद एक और परमानेंट इंप्रेशन भी लेना है विच इज कॉल्ड सेकेंडरी इंप्रेशन। ठीक है, हमारे पास स्टॉक ट्रे सिर्फ 3 साइजेस में होती हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, अब पेशेंट के उसके आर्चेस की एनलार्जमेंट के मुताबिक यू विल सिलेक्ट अ ट्रे आइदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज, और वो ट्रे सिलेक्ट करने के बाद यू विल टेक प्राइमरी इंप्रेशन। उसके बाद उस इंप्रेशन को आप पोर करेंगे इन हार्ड प्लास्टर एंड यू विल गेट अ प्रीलिमिनरी कास्ट। इस कास्ट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ सेल्फ क्योर एक्रिलिक यू विल फैब्रिकेट अ स्पेशल ट्रे जो आपने लेबोरेटरी में बनाई थी। ठीक है, गुड। स्पेशल ट्रे बनाने के बाद यू विल टेक सेकेंडरी इंप्रेशन। दिस इज अवर परमानेंट इंप्रेशन, हर चीज पेशेंट की इसमें रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, और परमानेंट इंप्रेशन लेने के बाद, सेकेंडरी इंप्रेशन की लेने के बाद you will get a master cast. इसे master cast इसे इसलिए कहते हैं because it is a permanent type of a cast. ठीक है, और इसके बाद we move on to, एक सेकंड ठहरिएगा, ये बीच में क्या आ रहा है, एक सेकंड। ठीक है, so इसके बाद हमारे पास record base बन जाती है। ठीक है, record base क्या है? It is the base on which teeth are placed. record base के बाद you fabricate occlusal rims। उसके बाद आपने record base तक यहाँ पे कॉलेज में काम किया था, आपने वैक्स से record base बनाई थी, उसके बाद आप लोग चले गए थे। उसके बाद हमने occlusal rims आपको लेबोरेटरी में बनवाने थे, इसके ऊपर we already had a lecture। occlusal rims लगाने के बाद, बनाने के बाद हम उसको occlusal rims को with the record basis पेशेंट के मुंह में जाके उससे मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स रिकॉर्ड करते हैं और उस क्लिनिकल स्टेप को कहते हैं जॉ रिलेशन।
After jaw relation, we articulate these occlusal rims and record bases on an articulator. आर्टिकुलेटर भी हमने पढ़ा था और आर्टिकुलेशन भी पढ़ी थी. आई होप कि आप सब साथ साथ वीडियोस भी देख रहे हो, विच आई डाउट वैसे, लेकिन ये कि उन वीडियोस को जरूर एक दफा देखें, ठीक है, ताकि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आता जाए और हम फिर आर्टिकुलेट कर देते हैं उसको ऑन आर्टिकुलेटर. आर्टिकुलेटर सेटअप, हमने इंटीरियर टू सेटअप सारा पढ़ा कि इंटीरियर टीथ किस एंगल पे किस इंक्लिनेशंस पे लगते हैं. फिर हमने पोस्टीरियर टीथ का सारा पढ़ा कि पोस्टीरियर टीथ किस एंगल्स पे किस इंक्लिनेशंस पे लगते हैं. और टीथ अरेंजमेंट जब आपने आर्टिकुलेटर पे दांत लगा लिए सारे दांत, फिर द नेक्स्ट क्लिनिकल स्टेप इज कॉल्ड ट्रायल और ट्राइन ऑफ अ डेंचर. ट्रायल का मतलब होता है कि कोई चीज ट्राई करना. हम पेशेंट के मुंह में बेसिकली वो डेंचर्स, रिकॉर्ड बेसिस विद दी आपकी आर्टिफिशियल टीथ पेशेंट के मुंह में जाके देखते हैं कि वो दांत सही मिल रहे हैं, पेशेंट को कलर पसंद आ रहा है, पेशेंट को दांतों का साइज पसंद आ रहा है. उस स्टेज को हम कहते हैं ट्रायल. और ट्रायल के बाद जब पेशेंट हमें कहता है कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, इसे मुझे फाइनल करके दे दें, तो हम क्या करते हैं, डेंचर की प्रोसेसिंग करते हैं, फाइनल प्रोसेसिंग. क्योंकि अभी तो डेंचर के जितने भी दांत हैं वो वैक्स में लगे हुए हैं ना. रिकॉर्ड बेसिस भी टेम्परेरी होती है, मैंने आपको पढ़ाया था कि रिकॉर्ड बेस भी टेम्परेरी होती है और ये दांत भी जितने हैं वो वैक्स में लगे होते हैं. तो ये सारा अभी टेम्परेरी है. अब ने हमने पेशेंट को देना है उसको परमानेंट करके, ताकि वो पेशेंट उसको यूज कर सके. परमानेंट हम उसको हीट की और एक्रिलिक में कन्वर्ट करके करते हैं, ठीक है. तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डेंचर प्रोसेसिंग, ठीक है. और अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये क्या चीज है, कैन एनीवन आइडेंटिफाई कि ये डेंचर प्रोसेसिंग में की पिक्चर में क्या चीज बनी हुई है? लेट्स सी कि कौन सबसे पहले बताता है, ठीक है. व्हाट इज दिस थिंग इन द पिक्चर? ठीक है, गुड. हुमा केम फर्स्ट, ठीक है, गुड आंसर. इट्स अ फ्लास्क, ठीक है, वेरी गुड. फ्लास्किंग बेसिकली वर्ड ही फ्लास्क से निकला है, बिकॉज अभी तक हमने कहीं भी किसी स्टेप पे, लेबोरेटरी स्टेप में फ्लास्क नहीं यूज की थी जो आप सब लोगों ने परचेज की है. सो अब ये जो फ्लास्क है इसमें वी विल परफॉर्म द डेंचर प्रोसेसिंग और सबसे पहला स्टेप इज कॉल्ड फ्लास्किंग, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट के व्हाट इज फ्लास्किंग बेसिकली. उससे भी पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं ऑफ द रिकॉर्ड बेसिस, ठीक है. रिकॉर्ड बेस क्या थी? Record base basically it was part of the denture that makes contact with the soft tissues and retains the artificial teeth. और ये हमने एक ग्राफ जो है, टेबल है, ये पहले मैंने आपको दिखाया था. इसमें टेम्परेरी रिकॉर्ड बेसिस की भी एग्जांपल दी हुई है, परमानेंट की भी दी हुई है. तो जब हम डेंचर की मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ आर्टिकुलेटर पे दांत लगा रहे होते हैं, तो हमने रिकॉर्ड बेस बनाई होती है टेम्परेरी of either shellac or base plate wax or vacuum formed vinyl or self cure acrylic, ठीक है. दिस इज टेम्परेरी रिकॉर्ड बेसिस. अब इन टेम्परेरी रिकॉर्ड बेसिस को आपने कन्वर्ट करना है परमानेंट में, आइदर हीट क्योर एक्रिलिक रेजिन या मेटल में, ठीक है. इस स्टेज पे मैं आपको मेटल में नहीं बता रहा कि उसके लेबोरेटरी स्टेप्स क्या हैं, हम दूसरा परमानेंट मटेरियल की बात कर रहे हैं विच इज हीट क्योर एक्रिलिक रेजिन. तो ये जितने भी टेम्परेरी मटेरियल्स हैं, अब हम उस डेंचर के टेम्परेरी मटेरियल्स को रिप्लेस कर रहे हैं विद हीट क्योर एक्रिलिक रेजिन, ठीक है. ये हमने सारी पिक्चर्स पहले देखी हुई हैं, ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया. अब हाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट, उसका एक प्रोसेस है, फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ डेंचर. ये हमारे पास इस वक्त इस स्टेज पर ट्रायल के बाद आ गया. हमारे पास वैक्स में रिकॉर्ड बेस बनी हुई है इस केस में, और एक्रिलिक वैक्स के अंदर दांत लगे हुए. ओक्लूजल रिम्स आपने याद होगा बनाए थे हमने, ओक्लूजल रिम्स वर मेड इन वैक्स, ओक्लूजल रिम्स में ही हमने दांत लगाए थे. तो ये हमारे पास सारा एक टेम्परेरी रिकॉर्ड आया हुआ है पेशेंट का. अब हमने बाय द हेल्प ऑफ अ फ्लास्क इसकी प्रोसेसिंग करनी है. तो देयर आर बेसिकली 4 to 5 steps in the final processing, ठीक है. Following laboratory procedures are carried out to make the complete denture ready for insertion. Number one is the flasking procedure. Flasking procedure by the name बता रहा है कि we will use the dental flask for processing, ठीक है, पहले स्टेप में. Number two is the dewaxing procedure. Dewaxing एक चीज होती है वैक्सअप
और वैक्सिंग, उसका मतलब होता है वैक्स लगाना, और डी वैक्सिंग का मतलब होगा वैक्स रिमूव करना। तो इन द सेकंड स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग वी विल परफॉर्म डी वैक्सिंग। जितनी भी चीजें वैक्स में थी वो हम वैक्स सारी रिमूव कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेज इज वैक्स रिमूव करने के बाद वी विल परफॉर्म पैकिंग ऑफ हीट क्योर्ड एक्रिलिक। हीट क्योर्ड एक्रिलिक को मिक्स करके हम फ्लास्क में पैक करेंगे, इसको कहते हैं पैकिंग ऑफ हीट क्योर एक्रिलिक। एंड लास्टली क्योरिंग ऑफ हीट क्योर एक्रिलिक। ठीक है, क्योरिंग ऑफ हीट क्योर एक्रिलिक का मुराद ये है कि व्हेन यू मिक्स हीट क्योर एक्रिलिक तो वो बड़ा सॉफ्ट होता है, और वो तब तक नहीं हार्ड होता जब तक कि आप उसको हीट नहीं करते। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड हीट क्योर्ड, बिकॉज इट बिकम्स हार्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। और इस प्रोसीजर को वी कॉल एट क्योरिंग। ठीक है, हीट क्योर एक्रिलिक को सॉफ्ट स्टेज से हार्ड स्टेज की तरफ लेके जाने के प्रोसेस को कहते हैं क्योरिंग ऑफ हीट क्योर एक्रिलिक। एंड फिर जब वो क्योर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, फिर हम उसकी फिनिशिंग करते हैं, जो एक्स्ट्रा हीट क्योर एक्रिलिक होता है उसको रिमूव करते हैं एंड पॉलिशिंग करते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, दीज बेसिकली आर द 5 स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ अ डेंचर। सबसे पहले फ्लास्किंग, फ्लास्किंग के बाद डी वैक्सिंग, where you remove the wax, then you pack the heat cure acrylic, you cure the heat cure acrylic, and finally you finish and polish the heat cure acrylic. ठीक है, आज हम बेसिकली फ्लास्किंग प्रोसीजर पढ़ेंगे और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, और फिर डीवैक्सिंग प्रोसीजर का भी हम पढ़ेंगे और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। अगर आप आज यहाँ पे होते तो ये हम आपसे प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कराते, आप सब अपने अपने डेंचर्स की फ्लास्किंग करते और फिर उसकी डीवैक्सिंग करते। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फ्लास्किंग। फ्लास्किंग की फाइनल आउटलुक इस तरह की कुछ होती है। अगर आप ये देखें तो ये फ्लास्क का कंटेनर्स है, जिसमें जो आपका टेम्परेरी डेंचर था आपने उसमें प्लास्टर के अराउंड से सराउंड किया हुआ है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लास्किंग। ये फ्लास्क के अंदर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं जब अपना टेम्परेरी डेंचर, इसको कहते हैं फ्लास्किंग। अब हम इस फ्लास्क के स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स देख लेंगे कि क्या होते हैं और क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ कंप्लीट फ्लास्क। इसके दो पार्ट्स हैं, एक इसका ऊपर का पार्ट होता है, इसे कहते हैं प्रेस। प्रेस इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसको आप जब रोटेट करते हैं तो ये इट अप्लाइज अ लॉट ऑफ प्रेशर, इट प्रेसेस द फ्लास्क टुगेदर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रेस। और इसमें एक अपर फ्लास्क है और एक लोअर फ्लास्क है। ठीक है, दीज आर फ्लास्क। अगर आप देखें तो प्रेस जो है उसके अंदर एक अपर फ्लास्क है और एक लोअर फ्लास्क है। ये एक अपर और लोअर दो फ्लास्क इसमें इसलिए होते हैं क्योंकि एक में आप अपर डेंचर की प्रोसेसिंग करते हैं और दूसरे में आप लोअर डेंचर की प्रोसेसिंग करते हैं। यानी कि कंप्लीट डेंचर के दो पार्ट्स होते हैं ना, एक अपर डेंचर और एक लोअर डेंचर। तो अपर फ्लास्क में आप अपर डेंचर को करेंगे, लोअर वाले फ्लास्क में आप लोअर डेंचर को करेंगे उसकी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पिक्चर में यू कैन सी जब फ्लास्क को हम ओपन करते हैं तो उसमें एक पार्ट है जिसको लोअर पार्ट है ये, ठीक है, और उसका ये अपर पार्ट है, ये हॉलो होता है और ये इस लोअर पार्ट के ऊपर फिट हो जाता है, और इन द एंड इसके ऊपर एक लिड होती है। ठीक है, अगर आप दोबारा देखें तो इसमें एक लिड भी है। इसमें लिड से मुराद ये होता है कि इसको ये कवर करती है। तो अब लोअर फ्लास्क को आप उसके ऊपर अटैच करते हैं अपर फ्लास्क का पार्ट, और उसके साथ उसकी लिड को आप अटैच करते हैं, तो वो फ्लास्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप देखें तो ये दिखाया गया, ये जो सेंटर में ऊपर की साइड पे ये फ्लास्क की लिड उतार के दिखाया गया। इसका एक लोअर कंपार्टमेंट है, एक अपर कंपार्टमेंट है, और अपर कंपार्टमेंट के ऊपर एक लिड है। ठीक है, तो ये फ्लास्क के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। नाउ इन अवर नेक्स्ट स्लाइड हम इसको मजीद डिटेल में देखेंगे कि हाउ यू परफॉर्म द फ्लास्किंग। ठीक है, अब इस वक्त हमारे पास क्या है, वी हैव द कास्ट ऑन विच वी हैव अ टेम्परेरी रिकॉर्ड बेस, और उसके ऊपर वी हैव एक्रिलिक टीथ इन वैक्स। ठीक है, और हमारे पास ये लोअर हाफ ऑफ द फ्लास्क है।
अब हमने बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, हम कास्ट को और इस लोअर हाफ ऑफ द फ्लास्क को सेपरेटिंग मीडिया लगाते हैं, विच इज पेट्रोलियम जेली. The first step is the petroleum jelly is applied to the inner surface of the flask and on cast. ठीक है, इस पेट्रोलियम जेली सेपरेटिंग मीडिया को लगाने का मकसद ये होता है कि हम कोई भी चीज जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसको रिमूव करना चाहेंगे तो इट विल सेपरेट इजीली. इसीलिए इसको हम कहते हैं सेपरेटिंग मीडियम, बिकॉज इसके साथ एक लेयर जेल बन जाती है जिसके बाद इसको रिमूव करना या उतारना आसान हो जाता है. तो सबसे पहले इसको हम पेट्रोलियम जेली की एक थिन लेयर इस फ्लास्क के लोअर हाफ पे और हमारे कास्ट के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे. नंबर 2 इज दिस पिक्चर. ठीक है, अब ऊपर वाली पिक्चर में क्या किया गया है, व्हाइट कलर का अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो दैट इज अवर सॉफ्ट प्लास्टर. आपने लोअर हाफ ऑफ द फ्लास्क में सॉफ्ट प्लास्टर डाला और उस सॉफ्ट प्लास्टर के अंदर आपने अपना कंप्लीट अपर डेंचर विद द कास्ट आपने डाल दिया. ऊपर वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो हाथों से अपने जो है कास्ट को उस सॉफ्ट प्लास्टर जो आपने लोअर हाफ में डाला था उसके अंदर एम्बेड कर रहा है उसके सेंटर में. और उसकी नीचे वाली पिक्चर में देखें, उसके वो एम्बेड करने के बाद वो उसकी साइड ऑफ द प्लास्टर जो उठी हुई है उसको स्मूथ कर रहा है. That you can see in the picture. So, flask is filled with freshly mixed plaster and cast along with the denture is placed inside it. Okay, this was our second step. Third step में आपने क्या किया, उस जो प्लास्टर लगा हुआ था साइड्स पे उसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया. ठीक है, अगर आप देखें तो प्लास्टर बिल्कुल आपके रिकॉर्ड बेस के साथ आया हुआ है और बिल्कुल स्मूथ है in the lower half of the flask. अभी upper half of the flask हमने अप्लाई नहीं किया, अभी सब कुछ lower half of the flask में हो रहा है. ठीक है, हमने lower half of the flask में प्लास्टर पोर करके हमने उसमें कास्ट along with the record base and the teeth हमने डाल दिए जिस तरह पिक्चर में दिखाया गया. नेक्स्ट इज, अगर आप देखें तो हमने उसको बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाया. जो दांतों का अक्लूजल प्लेन है दैट इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द फ्लास्क. ना हमने इसको ऊपर की तरफ टिल्ट किया है ना नीचे की तरफ टिल्ट किया है. ये लोअर हाफ ऑफ द कंटेनर में साइड व्यू से आप देख सकते हैं कि प्लास्टर के अंदर जो कास्ट हमने लगाई है वो इस तरह लगाई है कि दांत बिल्कुल पैरेलल है विद द बेस ऑफ द फ्लास्क. सरफेस ऑफ प्लास्टर इज स्मूथ एंड वेट फॉर इट टू सेट. और उसके बाद हमने इसकी बेस को पैरेलल रखा है विद द ओक्लूजल प्लेन. ठीक है, ये पिक्चर एक डायग्रामेटिक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि फ्लास्क के अंदर सॉफ्ट प्लास्टर डाला हुआ है और सॉफ्ट प्लास्टर के अंदर आपने कास्ट और डेंचर की सारी चीजें डाली हैं. और 3 और 4 जहां लिखा हुआ है तो वो ये नजर आ रहा है क्योंकि कास्ट की तो शार्प एजेस होती है ना, तो उन शार्प एजेस पे आप सॉफ्ट प्लास्टर लगा देते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए. देयर इज नो शार्प एज. आपकी फ्लास्किंग के दौरान हम कोई भी शार्प एज नहीं छोड़ते. प्लास्टर को भी मेक एब्सोल्युटली स्मूथ और उस पे हम ये चीज इसमें एम्बेड कर देते हैं. और जो 3 और 4 दिखाया गया कि जो शार्प कॉर्नर्स हैं उनको हम स्मूथ करके उसके ऊपर प्लास्टर इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि वो स्मूथ हो जाए. ठीक है, सो दिस इज द फ्लास्किंग ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द फ्लास्क. ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी डू इज, अगर इस पिक्चर में देखें तो एक ब्रश है और ब्रश पे कोई चीज अप्लाई की जा रही. वी आर अप्लाइंग समथिंग विद द ब्रश ऑन द प्लास्टर इन विच अवर टेम्परेरी डेंचर इज एम्बेडेड. ठीक है, इस पिक्चर में आप देखें ब्रश से कोई चीज लगाई जा रही है ऑन द प्लास्टर. तो ऑल प्लास्टर सर्फेसेज इज पेंटेड विद अ सेपरेटिंग मीडियम. अब हम एक और सेपरेटिंग मीडियम यूज कर रहे हैं. पहले हमने सेपरेटिंग मीडियम अप्लाई किया था टू द इनसाइड ऑफ द फ्लास्क. अब हम सेपरेटिंग मीडियम अप्लाई कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ प्लास्टर जिसके अंदर हमारा डेंचर एम्बेडेड है. इसका मकसद क्या है ये भी आपको समझ आ जाएगा. ये वाला सेपरेटिंग मीडियम जो हम यूज कर रहे हैं इसको हम कहते हैं कोल्ड मोल्ड सील. ठीक है,
अगेन दिस विल बी इन योर हैंडआउट्स, ये आपके पास सारा कुछ इसकी डिटेल्स होगी, इट्स प्रेजेंट इन द बुक। अगर आपने वो परचेज की हुई है प्री क्लिनिकल की, वो आपके पास होनी चाहिए, आप उसमें से भी गो थ्रू कर सकते हैं कि व्हाट इज कोल्ड मोल्ड सील। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे अभी थोड़ी देर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि हमने एक सेपरेटिंग मीडिया अप्लाई किया ऑन द सरफेस व्हिच इज कोल्ड मोल्ड सील। उसके बाद आप देखें हमने अपर हाफ ऑफ द फ्लास्क हमने उसके ऊपर लगा दिया। अगर पिक्चर में देखें जहाँ पे रूलर भी पड़ा हुआ है, इस पिक्चर में देखें हमने लोअर हाफ ऑफ द फ्लास्क के ऊपर अपर हाफ ऑफ द फ्लास्क लगा दिया। अपर हाफ इज प्लेस्ड ऑन द लोअर हाफ ऑफ फ्लास्क विद द डेंचर, ठीक है। और ये इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि दांत जो है उस अपर हाफ ऑफ द फ्लास्क से नीचे होने चाहिए इतना। अगर आप देखें तो अपर हाफ ऑफ द फ्लास्क की टॉप सरफेस से दांतों के दरमियान एक फासला है, ये फासला होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, प्लास्टर मिक्स करके उस डेंचर के ऊपर पोर कर दिया हमने, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है। अपर हाफ ऑफ द फ्लास्क हमने लगाने के बाद अब हाथों से उस फ्लास्क को पकड़ के ऊपर से हमने प्लास्टर और ज्यादा उसके ऊपर लगा दिया, और तब तक हमने उसको लगाते जाना है जब तक कि ये फ्लास्क का अपर हाफ फुल ना हो जाए प्लास्टर के साथ। और फिर हम उसको टैप करते हैं, इस नीचे वाली स्लाइड में टैप इसलिए करते हैं ताकि बबल्स ऊपर की तरफ आ जाए। प्लास्टर इज poured into the flask slowly and it is tapped to the full level, ठीक है। उसके फुल लेवल तक फ्लास्क इज टैप टू रिलीज एयर बबल्स। और ये देखें हमने फ्लास्क को टॉप तक फुल कर दिया विद प्लास्टर। एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कि हमने उसके ऊपर लिड प्रेस कर दिया, और जब आपने लिड प्रेस किया है तो उसके होल्स के अंदर से प्लास्टर पोर आउट हो रहा है। दिस मींस कि वो पूरा फ्लास्क प्लास्टर से हमने भर दिया, ठीक है। सो दिस इज आवर फ्लास्किंग प्रोसीजर, इट्स वेरी इजी, ठीक है। अभी हम इसमें से एक दफा दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं सारा कि हमने अभी शुरू से लेके अभी तक क्या किया। सबसे पहले हमने अपनी कास्ट ली और लोअर हाफ ऑफ द फ्लास्क लिया, उसमें हमने पेट्रोलियम जेली लगाई। फिर हमने प्लास्टर पोर किया और उस प्लास्टर में लोअर हाफ में हमने अपना कास्ट डाल दिया और उसकी सरफेस हमने टॉप की स्मूथ कर दी प्लास्टर की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में पूरा दिखाया गया है कि हम फ्लास्किंग जब लोअर हाफ की जाती है तो वो प्लास्टर हमने बिल्कुल स्मूथ कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने सेपरेटिंग मीडिया लगाया, कोल्ड मोल्ड सील ऑन द प्लास्टर, इसीलिए लगाया हमने। अब आपको समझ आ गई होगी सेपरेटिंग मीडिया इसलिए हमने बीच में इसके ऊपर लगाया था क्योंकि इसके ऊपर भी हमने प्लास्टर पोर करना है। अगर हम सेपरेटिंग मीडिया लोअर हाफ ऑफ द प्लास्टर पे नहीं लगाएंगे तो जब हम ऊपर से इसके ऊपर प्लास्टर डालेंगे तो प्लास्टर आपस में केमिकल रिएक्शन करके कांटेक्ट कर लेगा, वो आपकी फ्लास्क खुलेगी नहीं। वो तो केमिकली जब आप प्लास्टर पर डालेंगे तो वो तो आपस में केमिकली ज्वाइन कर जाएगा, उसका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। सो टू सेपरेट द लोअर एंड द अपर हाफ ऑफ द फ्लास्क यू अप्लाई सेपरेटिंग मीडिया, ताकि जब आप फ्लास्क को ओपन करना चाहें तो बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट लेयर ऑफ सेपरेटिंग मीडिया वो ओपन हो जाए। तो हमने इसलिए इस पे सेपरेटिंग मीडिया लगाया था। सेपरेटिंग मीडिया लगाने के बाद हमने अपर हाफ ऑफ द फ्लास्क को ऊपर लगाया लोअर हाफ के, और फिर हमने ये सॉफ्ट प्लास्टर पोर किया इसके ऊपर। अब ये सॉफ्ट प्लास्टर डेंचर के दांतों को और वैक्स को तो टच करेगा लेकिन नीचे वाले प्लास्टर के साथ वो कांटेक्ट कर तो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग मीडिया, और ये फ्लास्क आराम से दो हाफ्स में खुल सकती है बाद में। इसलिए सेपरेटिंग मीडिया लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं लगाएंगे तो आपकी फ्लास्किंग फेल हो जाएगी। और सेपरेटिंग मीडिया लगाने का यही तरीका होता है कि इट इज इन लिक्विड फॉर्म, इसको आप पेंट ब्रश से प्लास्टर के ऊपर लगाते हैं एंड यू वेट फॉर इट टू ड्राई, और उसके बाद आप फ्रेशली मिक्स प्लास्टर को उसके ऊपर पोर कर देते हैं, और उसके बाद टैप करके हमने सारे एयर बबल्स रिलीज किए और फिर हमने ऊपर तक उसका सॉफ्ट प्लास्टर फिल कर दिया और एंड में हमने उसके लिड लगा दी। तो दिस इज
ऑल अबाउट फ्लास्किंग, ठीक है। अगर आपके पास अभी कोई फिलहाल कोई ज़हन में क्वेश्चन आ रहे विच इज नॉट क्लियर, यू कैन आस्क, बिकॉज हम इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार रिगार्डिंग फ्लास्किंग, क्योंकि इस तरह हमने अपने कंप्लीट डेंचर की भी फ्लास्किंग करनी है और लोअर डेंचर की एक अलग से फ्लास्क में हम उसकी भी प्रोसेसिंग करेंगे सारी, ठीक है। सो आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस फिलहाल, तो वी विल मूव ऑन टू डीवैक्सिंग, ठीक है। अब डीवैक्सिंग क्या होगा, एज द नेम इंडिकेट्स वैक्स विल बी रिमूव्ड, ठीक है। तो डीवैक्सिंग क्या होगा, आपका जो ये आप फ्लास्क देख सकते हैं, गोल्डन कलर के दो फ्लास्क हैं, एक में अपर डेंचर है एक में लोअर डेंचर है और वो प्रेस में लगाए हुए। अब आपने इस कंप्लीट असेंबली को जिस तरह की ऊपर की पिक्चर में दिखाया है बॉइलिंग वाटर में डाल देना, ठीक है। इस पूरे फ्लास्क अपर एंड लोअर डेंचर्स को आपने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया फॉर 5 to 7 मिनट्स। अब इस बॉइलिंग वाटर में डालने की वजह ये है कि जब बॉइलिंग वाटर सराउंड करेगा इन फ्लास्क को, तो हीट की वजह से, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हीट, अंदर से वैक्स विल मेल्ट, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं डी वैक्सिंग, बिकॉज उसकी अंदर की जो वैक्स है इट विल मेल्ट। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब ये डी वैक्सिंग हमने 5 से 7 मिनट बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, फिर हमने इसको निकाला, अब फिर हम उसके अपर एंड लोअर हाफ को खोलेंगे। ये अभी हमने फ्लास्किंग की थी और मैंने आपको सारी दिखाई है, ठीक है। अगर ये लोअर हाफ भी देख सकते हैं और अपर हाफ भी देख सकते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ है, इसको खोलने के बाद इसके अंदर की वैक्स सारी मेल्ट कर गई है। रिमूव द फ्लास्क एंड ओपन द टू हाफ्स। अगर आपने सेपरेटिंग मीडिया ना लगाया होता तो ये दो हाफ सेपरेट ना होते, बिकॉज आपने लोअर हाफ पे कोल्ड मोल्ड सील लगाई थी और फिर पोर किया था अपर से, तो इसलिए ये दोनों फ्लास्क के हाफ्स आराम से सेपरेट हो गए, ठीक है। और ये देखें, ये हमने स्पैचुला से जो वैक्स थी वो रिमूव कर दी, जो थोड़े बहुत रेमिनेंट्स रह गए थे। कुछ तो बॉयल करने से वो वैक्स रिमूव होगी और जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रह गई थी वो हमने मैनुअली उसको पकड़ के रिमूव कर दिया वैक्स को। सॉफ्टन वैक्स इज रिमूव्ड। और ये देखें, इस पिक्चर में गर्म पानी डाला जा रहा है इसके ऊपर, ताकि जो भी वैक्स रह गई है वो गर्म पानी लगने से मेल्ट हो जाए। बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड टू रिमूव एनी रिमेनिंग वैक्स। और ये लास्ट पिक्चर में ये आप देख सकते हैं कि अपर और लोअर डेंचर के दो हाफ्स हैं एंड फ्लास्क्स आर केप्ट अपराइट टू गेट कूल एंड ड्राई, ठीक है। ये हमने अब इसको ड्राई करना है, बिकॉज इसको हमने बॉइलिंग वाटर में रखा है, इसकी वैक्स मेल्ट की, ऊपर से गर्म पानी डाला, तो हमने अब इसको ड्राई करना है। दिस होल प्रोसेस वाज कॉल्ड डीवैक्सिंग। इट इज अ 10 मिनट्स प्रोसीजर। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, टीथ किधर गए? वो मैं अभी आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाता हूँ। हाँ, वैक्स तो रिमूव हो गई, अब टीथ किधर गए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीथ जो थे वो प्लास्टर के अंदर रह जाएंगे। जो आपने ऊपर से प्लास्टर सेकंड हाफ में डाला था ना, आपने उस पे दांतों के ऊपर सेपरेटिंग मीडिया नहीं लगाया था, आपने सेपरेटिंग मीडिया सिर्फ लगाया था ऑन दी प्लास्टर। तो वो प्लास्टर से तो वो सेपरेट हो गया, लेकिन टीथ जो आपने अपर हाफ में प्लास्टर पोर किया था वो उसके अंदर एम्बेड हो जाएंगे, लाइक यू विल सी इन द कमिंग पिक्चर्स। ये देखें, ये डीवैक्सिंग करके हमने दोनों हाफ्स खोले, ये वैक्स थोड़ी बहुत मेल्ट हुई भी पड़ी हुई है, इसको हमने रिमूव किया। और अगर आप रिमूव करने के बाद देखें तो ये सारे दांत पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह की पिक्चर नजर आएगी जब आप उसको कंप्लीटली क्लीन कर देंगे। आपके प्लास्टर के अंदर टीथ घुस जाएंगे, एम्बेड हो जाएंगे, वहां पे लॉक हो जाएंगे, और जहां पे वैक्स थी वो सारी वैक्स मेल्ट होने के बाद वो हॉलो हो गई है, ठीक है। वैक्स सारी रिमूव हो गई है। इस प्रोसेस को हमने कहते हैं डीवैक्सिंग, ठीक है। और अब नेक्स्ट प्रोसीजर्स क्या है? पैकिंग एंड क्योरिंग। अब अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हीट क्योर एक्रिलिक को मिक्स करके हम इस जगह पे रख देते हैं और पैक कर देते हैं विद हीट क्योर्ड एक्रिलिक, ठीक है। जहां पे अब आपको प्रोसेस सारा समझ आ रहा है। वैक्स इसलिए हमने मेल्ट की है ताकि वैक्स रिमूव करने के बाद हम वहां पे हीट क्योर एक्रिलिक रख सकें। समझ आ गई आपको? इस तरीके से हम वैक्स को रिमूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लास्किंग एंड डीवैक्सिंग,
और फिर हम इस फ्लास्क में अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम हीट क्योर एक्रिलिक पैक करेंगे और इसकी फिर हम क्योरिंग करेंगे. दैट विल बी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. नाउ अ लिटिल बिट अबाउट द सेपरेटिंग मीडिया. हमने दो सेपरेटिंग मीडियम यूज किए थे. एक सेपरेटिंग मीडियम हमने पेट्रोलियम जेली यूज की थी ताकि जब हम इस पूरे आपने देखे फ्लास्क से जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कोई और डेंचर के लिए भी तो आपने करना है यूज. तो उसके लिए हम सेपरेटिंग मीडिया इसलिए लगाते हैं कि जब आप सारा काम कर लें तो हम इसको तोड़ के इसके प्लास्टर वगैरह सारे. अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है सर, वैक्स पर तो सब कुछ था, मींस डिटेल्स वगैरह. ठीक है, इसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि वो कहाँ गया सारा. ठीक है, वैक्स के ऊपर सारी डिटेल्स तो थी, लेकिन जब आप सॉफ्ट प्लास्टर लेकिन आप इम्प्रेशन लेते हैं, जब पेशेंट के मुंह में इम्प्रेशन लेते हैं तो आप किस चीज से उससे पोर करते हैं? विद प्लास्टर. प्लास्टर जब टच करता है ना इम्प्रेशन को तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है. इसी तरीके से आपने वैक्स को बिल्कुल नीट किया, उसके ऊपर आपने डाला प्लास्टर और प्लास्टर ने हर उसकी जगह को टच कर लिया. ठीक है, जब उसकी हर चीज को टच कर लेते तो प्लास्टर सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है. जिस तरह आप इस ब्लू वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो हॉलो स्पेस है उसमें वो देखें आपको आर्चेस भी नजर आ रही हैं. ये लोअर मैंडिबुलर का है. ठीक है, इसमें आपको बकल शेल्फ एरिया भी नजर आ रहा है, इसमें आपको रेट्रोमुलर पैड एरिया भी नजर आ रहा है, आपको इंटीरियर भी सेक्शन में आपको नजर आ रहा है, आपको सब चीजें इसकी नजर आ रही हैं. तो प्लास्टर में हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है और ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, वैक्स को रिमूव करके बिकॉज वैक्स वाज अ टेम्परेरी मटेरियल. अब हमने उसको रिप्लेस करना था विद अ परमानेंट हीट क्योर एक्रिलिक मटेरियल. तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम वैक्स को रिमूव करें, वो तमाम रीडिंग्स जो हमने वैक्स में बनाई हुई थी वो ट्रांसफर करें इन दी प्लास्टर, और अब इस प्लास्टर में हम हीट क्योर एक्रिलिक पैक कर लेंगे उस स्पेस में, ताकि हमारा बिल्कुल वही चीज आ जाएगी जो हमने वैक्स में बनाई हुई थी. ये फ्लास्किंग का प्रोसीजर डुप्लीकेट करता है इस प्रोसेस को. जो आपने बनाया था वैक्स के अंदर वो बिल्कुल डुप्लीकेट हो गए इन प्लास्टर. ठीक है, जब आप करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये तो वही चीज बिल्कुल निकल आई है जो मैंने अपने वैक्स में बनाई थी, बट नाउ इट इज इन हीट क्योर एक्रिलिक. ठीक है, तो हीट क्योर एक्रिलिक से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे. तो सेपरेटिंग मीडिया हमारे पास दो थे. We used two during flasking procedure. One was petroleum jelly applied to cast and the flask. जब हम सारी फ्लास्किंग कंप्लीट करके एंड कर देंगे, फिर हम जब इसको प्लास्टर निकालना होगा तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा कि हम इसको थोड़ा सा इस पे हैंडल के ऊपर मारेंगे तो वो सारा का सारा हमारा बाहर निकल आएगा मटेरियल. और सेकंड हमने यूज की थी कोल्ड मोल्ड सील. इट वाज अप्लाइड ऑन द लोअर हाफ ऑफ द प्लास्टर जो आपने स्मूथ की थी. कोल्ड मोल्ड सील कहते हैं इसे. कोल्ड मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कोल्ड मोल्ड के ऊपर लगाया जाता है. मोल्ड का मतलब होता है एक मॉडल कह लें, आप समझ लें. ठीक है, तो इस दैट इज व्हाई और एक सील बना देता है ये एक सेपरेशन की. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोल्ड मोल्ड सील. ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज कोल्ड मोल्ड सील, वेयर इज इट यूज्ड और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्लास्टर के ऊपर लगाने से क्या होता है इसमें. तो वो उसका सारा आंसर इसमें है. कोल्ड मोल्ड सील केमिकली इसको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल एल्जिनेट. वाटर सॉल्युबल एल्जिनेट जब आप अप्लाई करते हैं ऑन प्लास्टर, प्लास्टर केमिकली इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हमको सबको पता है. तो वाटर सॉल्युबल एल्जिनेट प्लस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको प्लास्टर कहते हैं, जब उसके ऊपर लगाया जाता है तो ये एक सील बना देता है एक सेपरेटिंग मीडियम की, विच इज कॉल्ड कैल्शियम एल्जिनेट. तो कैल्शियम एल्जिनेट एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से एक वो एक्ट करती है एज अ सेपरेटिंग मीडियम. ठीक है, दैट इज व्हाई वी यूज कोल्ड मोल्ड सील. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने पेट्रोलियम जेली क्यों नहीं यूज कर ली? पेट्रोलियम जेली भी तो सेपरेटिंग मीडियम है, आप उसको यूज कर लेते हैं. आपने कोल्ड मोल्ड सील क्यों यूज की? कोल्ड मोल्ड सील इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज, हम इसको पेंट ब्रश से लगाते हैं. इट इज इन वेरी थिन लेयर. आप नहीं चाहते कि बहुत मोटी लेयर बने. पेट्रोलियम जेली इज यूज फॉर रफ वर्क, जहां पे आपको रफ किस्म की सेपरेशन चाहिए. जब आपको बहुत नीट और प्रिसाइज किस्म की एक लेयर चाहिए तो यू अप्लाई कोल्ड मोल्ड सील. ये बिल्कुल पानी की तरह की एक लेयर होती है जो कि आप पेंट करते हैं ऑन दी प्लास्टर, और प्लास्टर पे लगने से वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से रिएक्ट करती है टू फॉर्म
insoluble separating layer which is called calcium alginate. So this is called mold seal. ठीक है, तो this was all about our फ्लास्किंग एंड क्योरिंग प्रोसीजर. अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा से एक दफा सारी स्लाइड्स दिखा दूं. लेट्स सी कि इफ यू गाइस रियली वांट कि मैं आपको दोबारा से एक दफा सारी स्लाइड्स और प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूं तो मुझे बता दें, अदरवाइज वील गो टू द वीडियोस. ठीक है, देयर इज अ 20-minute वीडियो ऑन Moodle. ठीक है, 12-minute वीडियो है ऑन द फ्लास्किंग. उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे कि फ्लास्किंग किस तरह करते हैं. और फिर उसके बाद देयर इज अ 5 to 7-minute वीडियो ऑफ डीवैक्सिंग. ठीक है, तो काइंडली आप लोग अपना Moodle अकाउंट खोलें और उसमें 2 वीडियोस अपलोडेड है ऑन फ्लास्किंग एंड डीवैक्सिंग. वो देखें. आई एम हियर. उसको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आपको तो मुझसे पूछे ताकि मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूं. ठीक है, सबको समझ आ गई? नाउ गो टू द Moodle वीडियो. प्रोस्टोडोंटिक्स के सेक्शन में वो Moodle वीडियो पड़ी हुई है, उसको जाके देखें. ठीक है, आई एम हियर टिल 1. आप Moodle पे वीडियोस देखें. नाउ दिस इज द टाइम फॉर द डेमोस्ट्रेशन. डेमोस्ट्रेशन दोनों देखें और फिर मुझे बताएं अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको उसमें फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ये प्रोसेस बार बार करना है इन 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर. पेशेंट के आपने कितने डेंचर्स बनाने हैं, पार्शियल डेंचर्स बनाने हैं, कंप्लीट डेंचर्स बनाने हैं, उन सब केसेस की आपने यही प्रोसेस करना है. फ्लास्किंग, डीवैक्सिंग, पैकिंग, क्योरिंग, सिर्फ यही तरीका है. वैक्स को रिमूव करके हीट क्योर एक्रिलिक में कन्वर्ट करने का सिर्फ यही तरीका है. और यही चीजें आपने बार बार करनी है. जब भी आप अपनी जिंदगी में पेशेंट को डेंचर भी देंगे तो यही चीजें रिपीट होती हैं सारी, यही करनी होती हैं लेबोरेटरी में. तो इन सब चीजों का समझना सीखना बहुत जरूरी है. आप अपने Moodle अकाउंट में जाएं और वो दोनों वीडियोस देखें.
रॉकिंग इन फ्लास्क का मतलब ये है कि जब आप उसको फ्लास्क में डालें तो वो बिल्कुल पैरेलल उसके होना चाहिए, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए और उसकी बेस को बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सारे परफॉर्म करने हैं आपने, फ्लास्किंग, डीवैक्सिंग, आर्टिकुलेशन, ओक्लूजल रिम्स, ये सब आपने करने हैं। और उस वक्त हम आपको ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ नहीं बता रहे होंगे, हम यही बताएंगे कि आपको ये वीडियोस देख लें और आके परफॉर्म करें। ठीक है, ये सब करना है आपने, प्रैक्टिकल भी इसके परफॉर्म करने हैं, क्योंकि पेशेंट्स करने से पहले प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा ना। हम डायरेक्टली आपको पेशेंट्स तो नहीं दे देंगे, 30 ईयर से आपने पेशेंट्स प्रोस्थेटिक्स में आके करने शुरू कर देने हैं। आपके 2-3 मंथ्स की रोटेशन लगेगी जिसमें आपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट करना है। तो इसलिए सबसे पहले प्रैक्टिकल में ये सब चीजें सीखेंगे तो हम आपको पेशेंट्स देंगे। अगर इस चीजों का आपने प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करके हमें नहीं दिखाएंगे, हम इसको आपका चेक नहीं करेंगे, तो हम आपको पेशेंट्स नहीं दे सकेंगे। इसलिए इन चीजों को गौर से देखें, और जब आप आएंगे तो हम आपको सबको ग्रुप्स में प्रैक्टिकल भी करवाएंगे ताकि आप सब देख सकें। ठीक है,
ठीक है, सॉफ्ट प्लास्टर यूज कर रहे हैं एकरा। हाँ, सॉफ्ट प्लास्टर यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है, सॉफ्ट प्लास्टर यूज किया इन्होंने। सेटिंग रिएक्शन से क्या मुराद है आपका? सेटिंग टाइम आपसे मुराद है? अच्छा, सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम इसका देखिए, दिस इज अ वीडियो ना, तो नॉर्मली जो सॉफ्ट प्लास्टर, अब ये पता नहीं कौन सा प्लास्टर यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं मुख्तलिफ प्लास्टर्स की। इन एनी केस जो हम यूज करते हैं उसमें सॉफ्ट प्लास्टर का जो सेटिंग टाइम होता है, इसमें इन्होंने मेरे ख्याल से उसकी सेटिंग टाइम स्किप कर दिया। ठीक है, उन्होंने आपको पूरी वीडियो, क्योंकि ये 12 मिनट्स की वीडियो है, लेकिन फ्लास्किंग 12 मिनट्स में नहीं होती, फ्लास्किंग को आपको 30 to 45 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप लोअर हाफ में प्लास्टर पोर करके उसमें कास्ट डालते हैं तो उसको सेट होने का वेट करते हैं, विच इज लाइक 15 to 20 मिनट्स। आपने सॉफ्ट प्लास्टर यूज किया हुआ, मिक्स किया हुआ, आपको पता है काफी टाइम लगता है, 15 to 20 मिनट्स तो प्लास्टर को सेट होने में लग जाते हैं। उसके बाद ऊपर हाफ सेपरेटिंग मीडिया भी आपने देखा होगा, इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाया लगाने में, सेपरेटिंग मीडिया लगाया जाता है, उसको भी 10 मिनट्स लगते हैं ड्राई होने में। फिर उसके ऊपर जब आप सॉफ्ट प्लास्टर पोर करते हैं तो उसको भी 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट लगते हैं उसको सेट होने में। तो ये पूरा फ्लास्किंग का प्रोसीजर है, ये 1 घंटे से पहले नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ 12 मिनट वीडियो, इन्होंने आपको बहुत जल्दी करके दिखाया गया। ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि आप सारा कोई ऐसी वीडियो देखें जिसमें इतना वेट करना पड़े। जो सेटिंग टाइम है वो हमने वेट करना है, जब तक कि प्लास्टर हार्ड नहीं हो जाएगा आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं जाते, चाहे कोई भी प्लास्टर यूज कर रहे हैं, यू हैव टू वेट फॉर इट टू सेट। ठीक है, बिकॉज इट्स अ 12 मिनट वीडियो, तो इन्होंने इसको सारा को जल्दी करके दिखाया ताकि आपको सारे फेजेस पता चल जाए इस प्रोसेसिंग के। आज किसी की वीडियो में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अगर किसी की वीडियो नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताएं। यहाँ पे इमरान भी बैठे हैं, मनीबा भी बैठी हैं।
ठीक है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपने मैक्सिमम वीडियो देख ली है। काइंडली जो मूडल अकाउंट के ऊपर वीडियोस लगाई जाती हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर देखा करें। ठीक है, यू हैव 3 to 4 मिनट्स लेफ्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो इसके। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी विल कवर पैकिंग एंड क्योरिंग ऑफ एक्रेलिक। ठीक है, और उसकी फिनिशिंग कैसे की जाती है। एंड डोंट वरी, वी विल हैव अ रिवीजन। फंक्शन खत्म हो गई, हमने सारे इसके लेबोरेटरी स्टेप्स आपको पढ़ा दिए, बट सून वील हैव अ वेरी क्विक रिवीजन क्लास। मैं चाह रहा था कि इसकी हम रिवीजन क्लासेस भी ले लें। इसके बाद हमने पार्शियल डेंचर पढ़ना है। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट डेंचर की रिवीजन क्लास अभी साथ साथ हो जाए कि मैं पहले एक दफा पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूं फिर रिवीजन क्लास स्टार्ट कराऊं? डू यू वांट अ रिवीजन क्लास कंप्लीट डेंचर? क्योंकि हमारा खत्म है, इसके बाद लास्ट लेक्चर है नेक्स्ट टाइम अबाउट फ्लास्किंग एंड क्योरिंग। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं एक रिवीजन 2 क्लासेस ले लूं कंप्लीट डेंचर के ऊपर, या आप चाहते हैं कि मैं एक दफ़ा पार्शियल डेंचर भी पढ़ा के कोर्स कवर कर दूं और उसके बाद रिवीजन क्लास हो? व्हेन डू यू वांट द रिवीजन क्लास? कंप्लीट डेंचर के साथ या एट द एंड? ठीक है, इसके साथ ही। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आफ्टर कोर्स साथ साथ रिवीजन, नॉट एट एंड। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, मेजॉरिटी अगर यही कह रही है कि साथ साथ कंप्लीट डेंचर के, तो नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि इसका फाइनल लेक्चर होगा कंप्लीट डेंचर के ऊपर, और फाइनल लेक्चर लेने के बाद फिर कंप्लीट डेंचर के ऊपर 2 या 3 रिवीजन क्लासेस होंगी जिसमें हम बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक रिवाइज कर लेंगे दोबारा। ठीक है, ताकि आपको जो हमने पढ़ा है वो आप एक दफा देख लें, फिर हम पार्शियल डेंचर की तरफ आ जाएंगे, एक नया टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, चले, हैव अ गुड वीक, और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।